ہار تو جیت سے ہچان ژون ریاستن مز اسمبلی انتخابات کے نتائجن پہ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن بیان وونک جموں کشمیر مز تہ کرو انتخابات اپوزیشنس ختم کرنے خاطر ایجنسین ہندس استعمالس متعلق محبوبہ مفتی سندس بیانچ کر رویندر رائنن سخت تنقید عمر عبداللہ سندس بیانچ کرک حمایت وونک جموں کشمیر مز انتخابات کراؤن الیکشن کمیشن کس اختیارس مز الیکشن کمیشن آف انڈیا 5 دسمبر میٹنگ جموں کشمیر مز خصوصی اسمبلی ڈویژن تو لوک سبھا انتخاباتن ہز تیارین ہند یہ جائزہ ہین جموں کشمیر چیف الیکٹورل آفیسر تمام 20 ڈی سیز کرن شرکت لداخ کین مسائلن پہ دل مز اعلی سطحی میٹنگ وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے سن شرکت مختلف امور پر تبادلہ خیال پنن خیالاتن تحریری شکل مز پیش کرنے شرکان دتسک ہدایت ممبر پارلیمنٹ لداخ کر دروج فضائی کرائن پہ صفائی پیش ترین ریاستن مز بی جے پی جیت پہ آو جموں کشمیر مز تہ جشن مناون یو ٹی کین مختلف مقاماتن پہ کر بی جے پی کارکنو تو لیڈرانو ریلی وونک ون بنائے بی جے پی جموں کشمیر مز تہ حکومت آداب کوشر خبر ہیت چھس بہ منازع شاہ ہار تو جیت سے ہچان ژون ریاستن مز اسمبلی انتخابات کے نتائجن پہ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ دیت بیان وونک جموں کشمیر مز تہ گژھِ انتخابات انعقاد کراونہ ین اس ست گوس انصاف یون کرنا جموں کشمیر کا سوال ہے وہاں آج تک بھی الیکشن نہیں ہو رہے 6-7 سال ہو گئے کیا وجہ ہے ہم لوگ بھی تو اس بھارت کا حصہ ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے باقی جیت اور ہار ہوتی رہتی ہے ہم لوگوں کو ہار سے بھی سیکھنا چاہیے اور جن نے جیتا اس سے بھی سیکھنا چاہیے کہ بھارت کو ایک رکھنا ہے بھارت سب کے لیے ہے اور بھارت کو مضبوط کرنا ہم سب کا کام ہے سر انڈیا الائنس کی جو بات ہے اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے انڈیا الائنس کوئی الائنس میں فرق نہیں پڑے گا we'll have to work harder, stronger. سب کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے کرنا پڑے گا اور آگے چلنا پڑے گا بہت میدان بہت آگے ہے اپنی پارٹی نائب صدر غلام حسن میر وون سے بی جے پی سن جیت سے ظاہر گژھان سے بی جے پی مقامی قیادت جوش تو لگن سان متحد گژھت کام کران تمو کو جموں کشمیر مز انتخابات نہ کراونس پہ بی جے پی تنقید ناردرن انڈیا کی اسٹیٹس ہیں جو بی جے پی کا ایجنڈا ہے جو بی جے پی کی ایکسیپٹیبلٹی ہے ان الیکشن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی گراس روٹ لیول پہ انٹیکٹ ہے دوسرا جو ان کے کاریہ کا کام کرنے کا طریقہ ہے جو وہ یکجہتی سے کام کرتے ہیں یونائٹڈلی کام کرتے ہیں ریزلٹ اسپیک دیٹ وے اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ مودی کا جو میجک ہے اور امت شاہ کی جو مینجمنٹ ہے دیٹ از دیئر اس لحاظ سے ابھی اپوزیشن کو نہیں لگ رہا ہے کہ ان کی ابھی اتنی ساکھ بنی ہے تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے محنت کی ہے اس طرح گراس روٹ لیول پہ انہوں نے اپنی بنیاد مستحکم بنائی ہے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جموں کشمیر میں انتخابات نہیں ہو رہے ہیں اور بی جے پی بھی یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ گراس روٹ لیول پہ وہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط بنائیں اور اپنی جو جیت ہے وہ یہاں پہ دکھائیں گے آگے چل کر دیکھیے جب ہم یہاں الیکشن کرانے کی بات کرتے ہیں ہم تو مانتے ہیں اس میں بی جے پی ہی ذمہ دار ہے کہ وہ یہاں الیکشن نہیں کراتی ہے جبکہ الیکشنز ہونے چاہیے جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا ہے کون جیتتا ہے کون نہیں جیتتا ہے یہ عوام کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حکومت خود بنائیں اپنے نمائندے خود چن لیں جموں کشمیر کے لوگوں کو انہوں نے محروم رکھا ہے یہ بڑی دکھ بات ہے اور اپنی پارٹی میں ذاتی طور ہمیشہ سے اس بات کی مخالفت کرتا ہوں کہ بی جے پی نے جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈس ایمپاور کر کے رکھا ہے
इनको अपने नुमाइंदे चुनने का हक नहीं दिया है, हमको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दूर रखा है। अपोजिशनस खत्म करने खतरे एजेंसियन हिंदिस इस्तेमालस मुतलिक महबूब मुफ्ती संदिस बयानच कर रविंद्र रायनन सख्त तनकीद वोनुक अपोजिशन पार्टीज डायरेक्शन लेस उमर अब्दुल्ला संदिस बयानच कर हिमायत वोनुक जम्मू कश्मीर मज इंतखाबात कराउन इलेक्शन कमीशन किस इख्तियारस मज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की आवाम ने दिल खोलकर सपोर्ट किया है। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। तेलंगाना में बीजेपी ने जबरदस्त ग्रो किया है। ये सब मोदी जी ने जो डेवलपमेंट की है, जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जो लोगों का भला मोदी साहब ने किया है, जो गरीबों और ज़ईफ़ों की खिदमत मोदी साहब ने की है, जो डेवलपमेंट देश के अंदर मोदी साहब ने की है, ये उसका नतीजा है। रही बात अपोजिशन की, जब ये कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के हुक्मरान खुद सरकार में थे, इन्होंने कभी लोगों की खिदमत तो की? ईडी की बात कर रही है। अब देखो, खुद इनका सफाया हो रहा है तो इनको ईडी याद आती है, इनको सपने में भी कमल का फूल याद आएगा। मैं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है अब उसका खतरे में है, वो मानते हैं कि इंडिया ब्लॉक खतरे में। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ी आपके लिए कामयाबी है कि अपोजिशन के लोग भी अब कहते हैं कि इंडिया का कोई फ्यूचर नहीं जो ब्लॉक है? देखिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ साफ बता दिया है कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में अब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम अपोजिशन की पार्टियों का सुपड़ा साफ है। खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है, मान लिया है कि पूरे देश में मोदी साहब की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी की ज़बरदस्त लहर है और 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपोजिशन पार्टीज कहीं नज़र नहीं आने वाली हैं। और जम्मू कश्मीर में भी जब यहाँ असेंबली इलेक्शंस होंगे, इन सब का सफाया होगा, कोई नज़र नहीं। लास्ट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम मुबारक करते हैं कि बीजेपी जीती है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों भी नहीं हो जाएंगे। मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूं, इलेक्शन यहां भी हो। मैं तो चाहता हूं आज इलेक्शन हो जाए। मैं आपके चैनल के बजरिया इलेक्शन कमीशन को गुजारिश करता हूं कि वो आज ऐलान करे जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए। आपको लगता है कि तैयार है? नहीं, आपको नहीं लगता है कि एक जवाज़, वो कहते हैं कि 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए, यहाँ क्या बात हो नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना है ना। रविंदर रैना ने तो कोई ऐलान नहीं करना है। मेरे हाथ में होता है तो मैं आज ऐलान कर दूं जम्मू कश्मीर का कि कल यहां वोटिंग करा दो, क्योंकि मुझे कहते हैं कि आप डरते हैं? मुझे मालूम है, डर रहे हैं। मुझे मालूम है यहां बीजेपी की हुकूमत बनेगी। खुद उमर अब्दुल्ला साहब ने बोल दिया है कि अगर यही हालत रही तो अपोजिशन पार्टी समेत एनसी, कांग्रेस, पीडीपी इनका सफाया हो जाएगा और देश मोदी साहब के साथ जुड़ चुका है। और जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे सब अपोजिशन का सफाया होगा और यहाँ कमल का फूल ही फूल खिलेगा। थैंक यू। के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर 5 दिसंबर मीटिंग तो यथ मज खसूसी समरी डिवीजन सा जम्मू कश्मीर मज लोकसभा इंतखाबात के तैयारियन हुंद ये जायजा है न तो इलेक्शन कमीशन के अहदेदार करन वर्चुअल मोड के जरिए पगा गसन वाजिन अथ मीटिंग में शिरकत। जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तो तमाम वुहन अजलई के जिला तरक्याती कमिश्नर रोजन अथ मीटिंग में शरीक। खबरों सिलसिल रोज जारी मगर तम ब्रो अक वक्फ। स्टॉप अट्टा 2 अंगुली। जमुई के मलेपुर थाना इलाके में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। घरेलू विवाद में महिला ने घटना को दिया अंजाम। मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र के पड़ोसी के बीच मारपीट। 5 घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में हथुआ थाने की पुलिस ने शराब से भरी कार को किया जब्त। 375 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
सहारनपुर में जमीन विवाद में भाई ने की भाई की हत्या के लिए दी थी 1 लाख की सुपारी, 2 आरोपी अरेस्ट। बलरामपुर में तेंदुए ने 10 साल की बच्ची पर किया हमला, हमले में बच्ची की मौत, पचपेड़वा थाना क्षेत्र की घटना। जौनपुर में मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा, हत्यारे पिता को वक्त पर तुंद खर मकदम 3 रियासतन मज असम्बली इंतखाबातन मज बीजेपी हिंस जीत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के कारकनों तो लीडरानो मनो जश्न, श्रीनगर मज ती मनो बीजेपी कारकनों तो लीडरानो पार्टी हिंस जीतुक जश्न। 3 स्टेटन हज क्लीन स्वीप एक्सपेक्टेड तो स्पेशली राजस्थान ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी हमेशा रोजमस तत आव बीजेपी, इन गई छत्तीसगढ़ तत आव बीजेपी। वह सारी ब्रो बह गोड दिवान देश किस वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी तिमन मुबारकबाद कर तिस मोदी जी शख्सियत तिहुद सह मैकनातीस ये वन सा कशिश सा कशिश गई रात बुश लुको, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, यथ सूरत मज कि मध्य प्रदेश पन इनकमेंसी तमें अलाव तून 18 वरी गोडनेथ मार्जिन तम खो ज्यादा पे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ मज कांग्रेस अहंकार तिमन घुमंड तिमन तत छत्तीसगढ़ मज तो राजस्थान मज, और सुई अहंकार तो सुई घुमंड मिलो रात मेच मज तत क्यों लुको तिमो दुत रात साथ डेवलपमेंटस, अमनस, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथ दुतुक रात साथ। तो नरेंद्र मोदी जी यस पतमें वरियन मज कर तो रात यस हैट्रिक यमन 3 स्टेटन मज बनो, तो यस हैट्रिक बनावन वाजिन 2024 किस पार्लियामेंट इलेक्शन मज रात क्लियर गो कि रात NDA तमिक किल वन देवार सह देवार गो रात नेस्त नाबूद, तो सह रलो रात जमीन तो NDA रात मे बासान रात पे NDA के लीडरन निंदर आम क्या तथ मज चाहे उमर साहब या महबूबा जी यम बड़ चिक चाव सान ये पे गई तिमन तौर तिमन ससा करो इंडिया अलायंस मज शमूलियत, शायद तिमन पन शक कि कांग्रेस जेन तिक आखिर सारी औलाद कांग्रेस की तिक ये फैमिली पॉलिटिक्स खानदानी या सियासत सह कांग्रेस तथ पे पकान नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तथ पे पकान PTP तम की औलाद, और यमो बनाए ये PhD बनाए तो आज पान पाम पाम कर तिथ तुम बोर बार पान पाम कर तिथे आज ये पाम कर, मगर रात पे रिजल्ट रात द्राव 3 स्टेटन मे बासान उमर साहब तो महबूबा जी आज रात शोंगमित तिक ख्वाब वुचान अख मुसलमान कौशुर मुसलमान हिंदुस्तान मुसलमान चुन मे सह पार्टी यथ पार्टी यह कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। छत्तीसगढ़, राजस्थान तो मध्य प्रदेश असम्बली इंतखाबातन मज बीजेपी जीत आय जम्मू कश्मीर मज सेलिब्रेट करने। मोहम्मद सलीम बट, शाहनवाज खांडे, अब्दुल मजीद खांडे, मुजम्मिल नजीर तो सजाद अहमद मीर ते मौजूद, बानहल आओ जीतुक जश्न मनाने। देश की मजबूरी है। भाई मोदी जी का धन्यवाद कहूंगा कि जिन्होंने पूरे देश के लिए जो काम किया है, जो गरीबों का ख्याल रखा है, जो हर गरीब को अपना शेयर पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं तहे दिल से पहले अपने कायद को नरेंद्र भाई मोदी जी को, श्री नरेंद्र या अपने अमित शाह जी को, अपने रविंदर रैना को, अशोक कोल जी को तहे दिल से मुबारकबादी देना चाहता हूं। लोग कहते थे कि अब बीजेपी का सफाया होगा, अब बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। देख लो, ये पब्लिक के सामने हैं, आने वाले जो नतीजे आए हैं वो विकास बोल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है पूरे विश्व में, तो ये उसके नतीजे आए हैं। और मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी आज से 20 साल पहले इस मुल्क के बादशाह बनने चाहिए थे। ऐसा प्राइम मिनिस्टर पूरे विश्व में नहीं है जैसे हमारे हिंदुस्तान में है। जो काम आज से 20 साल पहले होने चाहिए थे, कॉलेज, हॉस्पिटल, डोडा हेडक्वार्टर बीजेपी पार्टी के इस दफ्तरस मज आई मोदी संदिस हकस मज नार लगावना, रैली ते आई करना। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और MP
जो भारत का हर्ट है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है और उसी के सेलिब्रेशन में आज डोडा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से एक रैली, विक्ट्री रैली के रूप में पूरे शहर में घूम के अभी जो है यहाँ पे दोबारा अपने कार्यालय में वापस आई। बीजेपी जो है ये इसका कैडर बहुत मजबूत है और ग्राउंड लेवल से बीजेपी जो है काम करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रही होंगी। जो त्रुटियां हैं हज 2024 हज फॉर्म आज यानी 4 दिसंबर पे 20 दिसंबर 2023 ताम यन भरन मरकजी अकलियत वजीर वजारत दित अमिच अख नोटिफिकेशन जरिए जानकारी के जरिए हज 2024 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि हज की जो प्रक्रिया है उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। शेड्यूल के तहत आज से यानी आज 4 दिसंबर से 20 दिसंबर 2023 तक आप हज फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए ऑनलाइन हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसी के साथ साथ हज सुविधा का जो ऐप है उसके जरिए भी, मोबाइल के जरिए भी आप हज एप्लीकेशन को भर सकते हैं। अगर बात करें कि जो हज होने वाला है इसके लिए इंटरनेशनल पासपोर्ट होना जरूरी है और जिसका 31 जनवरी 2025 तक वैलिड होना जरूरी करार दिया गया है। नई हज पॉलिसी जो पिछले साल आई थी, 2023 में आई थी, उसके तहत ये हज होगा, यानी कि 80% जो कोटा है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास रहेगा, यानी ज्यादा लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज पर जा सकेंगे। इसके अलावा 20% जो कोटा है वो हज टूर ऑपरेटर्स के पास जाएगा, यानी कि हज टूर ऑपरेटर्स भी लोगों को हज पर भेज सकेंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फिलहाल 20 दिसंबर 2022 तक हज फॉर्म भरा जा सकता है, तो तमाम गाइडलाइंस से पहले पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि कई तरह के बदलाव जो है नई हज पॉलिसी में पहले ही कर दिए गए थे, यानी कि हज को सस्ता करने के लिए कई चीजें जो सामान ले जा सकते थे उनको बंद कर दिया गया था, बल्कि सीधे तौर पर अब कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश है ज्यादा बेहतर हज हो, इसलिए जल्दी से ये फॉर्म आ गया है। तो सभी लोग जो भी हज पर जाना चाहते हैं वो हज को अप्लाई कर सकते हैं आज से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। निशात श्रीनगरस मज नाड़ लगन सत गई 2 रिहायशी मकानात खाकसर। यम मकानात गई मुकम्मल तौर तबाह तो तिहुंद सोरी सामान ति गो राख। नाड़ लगनच वजह शॉर्ट सर्किट वन। पे शुक्रगुजार ये गाँव पब्लिक बे आव फायर सर्विस ते आव पुलिस कंसर्न ते आव तमो कोर जबरदस्त कोशिश खत्म करने की नार मकलोक नुकसान लगभग डैमेज जायदाद खत्म, त्राम खत्म, बाकी चीज लगभग 9 मकान हेत 9 तम खत्म। सहारे लकट बच्चे वजह क्या गो नार मेनस तरह शार्ट गो पावर अब अथ सतन ब्लॉक अन पे पई अत क्या गो अत कपर गो यूत डैमेज अपोर तान 2 मकान गई खाकिस्तान नुकसान वारिया नुकसान क्या हेक बह वनित ये कूता नुकसान गो मे हेक न बह वनथे। फायर टेंडर्स आया टाइमस पे अन तम टाइमस पे पब्लिक तह पे टाइमस पे हेको शुक्र गुजार पब्लिक इस टाइमस पे वोत कर गो ये गो 2 बजे मगर एक्चुअली मेन प्रॉब्लम सह वत हज फायर सर्विस हेकान आराम सान वत टाइमस पे, मगर एक्चुअली मान वत हज योर जबरदस्त प्रॉब्लम नुकसान हद को 4 गोमुत। बस पान SMC डिपार्टमेंट एज ए कैजुअल लेबर तो शुमारस तक बची 2 सोरे पान से पे नुकसान गो वही नाल जट रोज न कुन की रोद अंत गो नार शाट गो टायर वही बेसार इन कह सहारा कह मदद लोन थोड़ा बहुत मे कोड़मुत 2 जायन 2 बैंक तथ पे करिए थोड़ा बहुत अत पे मेंटेनेंस। सर्दी बढ़न वाजी सर्दी जबरदस्त बढ़न वाजी गवर्नमेंटस गुजारिश करान अगर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के ध्यान तिकाज वनकस वंद तो इस गो वनकस मान शुर आयाल हेत। कशीर केन बेशतर मकामातन मज रातुक दर्जे हरारत फ्रीजिंग पॉइंट निश गिरोमुत तो गुलमर्ग मज रात हुंद कम से कम दर्जे हरारत मनफी मज रोजान।
न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख मज तुंद खैर मकदम बहुस मुनीर हुसैन हुरा यथ पे तुम जानान मज वन शदीद सर्दी गई शुरू ये पे पत्मे पेशन गोई महकमा मौसमियात नुमन दोहन मज वन सर्दी हुंद शिद्दत सह ग ज्यादा तो सह आव लबन तथ पे वदी मज मुख्तलिफ जायन रोद सु दर्जा हरारत तथ मज आई कमी रिकॉर्ड कर तो सयाहती मकाम गुलमर्गी हज कत करो तो ये वनकस टेम्परेचर दर्जा हरारत वनकस ये रिकॉर्ड कर वनकस यानी मनफी दर्जा हरारत रिकॉर्ड कर इत पे वुचान पत कुन रात गुजरे तथ मज यानी मनफी 3.3 डिग्री आव रिकॉर्ड कर रोद सु दर्जा हरारत तो आज रोद सु कत करो तो तथ मज आव मनफी 3.0 दर्जा हरारत सह आव रिकॉर्ड कर इत पे वुचान गुलमर्गी हज अगर कत करो द्रंग कत करो तो अत वाटर पाइप तम रस रस वनकस वन तम लगित गसान वनकस पाइप तिम वनकस शुशुर लगान इत पे द्रंग मज वुच तो गुलमर्गी मज वुच शिद्दत सर्दी सह बढ़े वनकस तो इत पे अगर चिलाई कलान कत करो 21 दिसंबर पे 40 दुहन सह चिलाई कलान स्टार्ट गसान तम ब्रूट यह सर्दी हुंद सिलसिल वनकस बढ़ो अंदर शामस सर्दी दोहस तो हिंद लूक इत पे गरम पलव वनकस तम मजबूर गसान वनकस तम लागन पे कांगरी रवायती कांगर फेरन तमिक इस्तेमाल गसान तो बहरहाल इत पे गुलमर्गी मज टूरिस्ट तो तम वनकस अगर तम गरम इलाकों पे तम वनकस यानी लुत्फ तुलान अमे सर्दी हुंद तो मगर ये आई वुचान गुलमर्गी मज वनकस सारे फिरस्त मुकाम वनकस यथ मज माइनस टेम्परेचर वनकस लबन तो मुख्तलिफ जायन तम शिशर गांट अबेजान गम या कुन जाए आब जमा सह लगित गोमुत वनकस तो यह सिलसिल वनकस शुरू गोमुत वन अंदर एहतियात पेवान कर जुकाम तफ बाकी चीज गसान तो इन चीजन हुंद बड़ ख्याल थवन यथ मौसमस मज तो अम खतर बड़ यानी एहतियाती तदबीर तिमन पे अमल करने जरूरत। मुनीर हुसैन न्यूज़ 18 गुलमर्ग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कर बिजबिहाड़ा अनंतनाग पद्म अवार्ड याफ्ता समाजी कारकुन जावेद अहमद टाक सज कामिच तारीफ मौजूद अफराद किस आलमी दोहस किस मौकस पे सदर जमहूरिया कर जावेद अहमद टाक सज सराहना। जम्मू कश्मीर के श्री जावेद अहमद टाक एक आतंकी हमले में घायल होने के बाद व्हील चेयर से चलते फिरते हैं। वे पिछले 2 दशकों से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए कार्यरत है। दिव्यांगजनों को ये संदेश देते हैं बी ए पार्ट नॉट ए पार्ट, यानी भिन्न नहीं अभिन्न बनो। श्री जावेद टाक जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। खुशी मिलती है जब आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके फाउंडर का नाम लेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेगा और आपके स्कूल का नाम लेगा। ज़ेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पूरे जम्मू कश्मीर में एक वाहिद इदारा है जहां पे एजुकेशन रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उन बच्चों को मिलती है जिनको समाज के किसी तबके ने इवन नेगलेक्ट किया होता है, तो उनको हम यहाँ पे एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और हमें आज बहुत मसरत है, खुशी है कि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फिर से जावेद जी का नाम और ज़ेबा आपा का नाम लिया। सयाती मकाम गुलमर्ग मज विंटर टूरिज्म विंटर स्पोर्ट्स गुलमर्ग साफो शफाफ थवन खतर दीगर इंतजामात के सिलसिलस मज गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम राजा सन सरबराही मज टाउन हॉल टंगमर मज गई आख मीटिंग मुनक़िद। जैसे स्नोफॉल जब होती है तो काफ़ी चैलेंजेस हमें दरपेश होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है, टूरिस्ट को इनकन्वीनियंस होती है, तो एक तो इन मुद्दों पे। दूसरा जो विंटर गेम्स यहाँ पे विंटर गेम्स हो रही हैं, यहाँ स्कीइंग जो जिसके लिए गुलमर्ग पूरी दुनिया में मशहूर है, तो इस स्कीइंग ऑपरेशंस को हम कैसे रेगुलेट करें, स्की स्लोप्स को कैसे हम लोग ऑपरेशनलाइज करें, और बाकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, क्लीननेस मेंटेनेंस है गुलमर्ग की, जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हमारे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के जो इश्यूज़ हैं, इन सारे इश्यूज़ पे हमने यहाँ पे आज बात की और ऑफिसर्स के साथ एक ब्रीफ मीटिंग की, सो दैट जो अपकमिंग टूरिस्ट सीज़न है, एक तो ये टूरिस्ट सीज़न जो विंटर सीज़न हमारा अच्छा जाए, और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हमारे हैं उन लॉन्ग टर्म इश्यूज़ पे भी हम काम करते रहें, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस विंटर सीज़न जो समर सीज़न आने वाला होगा उस सीज़न तक जो है हम उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएं।
کشر خبروں مز فی الحال یتھے مگر تھی روزو وچھان نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل آداب.